میں یتیم تھی، اپنے تایا کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے نانا مجھ سے محبت کرتے تھے، مگر میرے دونوں ماموں ان کی بیویوں کی وجہ سے میں ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ مرتے مرتے نانا نے ایک ایسی شرط رکھی جسے سن کر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان کی آخری خواہش تھی میں ماموں کے بیٹے شاویر سے شادی کروں، تب ساری جائیداد ہم دونوں کے نام ہوگی۔ میں نے انکار کیا تو زبردستی میری شادی۔ نہیں تایا جان، آپ جو بول رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ میں پرسوں ہی تو نانا جان سے ملاقات کر کے آئی ہوں، وہ ایسے کیسے ہم سب کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ میں چاہ کر بھی تایا کی بات پر یقین نہیں کر پائی تھی۔ میری حالت ایسی تھی جسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ مجھے اپنے نانا سے بہت محبت تھی جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے میرے ماں باپ کے بعد میرے نانا نے ہی تو شفقت بھرا لمس بخشا تھا۔ میرے تایا میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، میرے بچے حوصلہ کرو، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ جبکہ یہ الفاظ سن کر میں ٹوٹ کر بکھری تھی۔ میں روتے روتے زمین بوس ہو گئی تھی۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ میں روتے ہوئے اپنے بال نوچ رہی تھی۔ میں کیوں ان کے پاس سے آئی؟ وہ آخری وقت مجھے کتنا روک رہے تھے۔ گڑیا رک جاؤ، مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ تمہارے وجود میں مجھے اپنی بیٹی کی جھلک نظر آتی ہے۔ تم کیوں جا رہی ہو؟ جبکہ میں ان کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولی تھی، نانا جان جلد واپس آ جاؤں گی، تایا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کب سے انہوں نے مجھے آنے کا بولا ہوا ہے، بس آپ کی وجہ سے میں انہیں ٹال رہی ہوں۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ میری ممانعت مجھے برداشت نہیں کرتی تھی، لفظوں ہی لفظوں میں طنز کے تیر چلا دیتی تھی۔ ماں تو مر گئی، ہمارے سر پر عذاب چھوڑ گئی، آئے دن ہمارے گھر پر ناک بن کر آ جاتی ہے، اور یہ باتیں میرا دل چیر کے رکھ دیتی تھی۔ میں اپنے تایا کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی تھی۔ میری تائی جان کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے مجھے پال کر بڑا کیا تھا، اور ننیال میں صرف نانا تھے جو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میرے نام کا دم بھرتے تھے۔ امی کے انتقال کے بعد تو ایسے ہو گئے تھے جیسے میں ان کی بیٹی ہوں۔ میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتی تھی تو وہ مجھے آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ ان کی بہت بڑی حویلی تھی اور کئی جائیدادیں تھیں جو صرف اور صرف نانا کے ہی نام تھیں۔ میرے 2 ماموں بھی تھے، لیکن بے حد لالچی تھے، ہر وقت نانا کے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے تاکہ وہ ان کی جائیداد حاصل کر سکیں۔ لیکن نانا اس عمر میں بھی کافی ہوشیار طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو کام پر ضرور لگایا ہوا تھا، لیکن سارا حساب کتاب خود دیکھتے تھے۔ اور آج جو خبر میرے ننیال سے آئی تھی وہ مجھے توڑ کر رکھ چکی تھی۔ نانا کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ بات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں تایا اور تائی کے ہمراہ ننیال پہنچی، اس سامنے ہی میرے نانا کی میت رکھی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میرے سر پر آسمان آن گرا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ پہلے امی، پھر ابو، اور اب نانا جان۔ ان لوگوں کی موت نے تو مجھے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں ان کے قریب بیٹھ کر زارو قطار رو رہی تھی، جبکہ میں نے دیکھا تھا ان کے بیٹوں کی آنکھوں میں ذرا دکھ کے آنسو نہیں تھے، سبھی مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے۔ مجھے سب معلوم تھا، یہ بھی ان کی جائیداد حاصل کرنے کے ہی حربے تھے۔ میں کافی دیر تک ان کی میت کے پاس ہی بیٹھی روتی رہی تھی، اور جب اللہ اکبر کی صدا لگا کر انہیں اٹھایا گیا تو میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں کسی بھی طرح انہیں روک لینا چاہتی تھی، میرے کانوں میں بس ان کے آخری جملے گونج رہے تھے، مت جاؤ نا میری جان، رک جاؤ، تمہارے نانا تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور وہ واقعی میرے بغیر رہ نہیں پائے تھے، اور اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ شام ہو چکی تھی، میں حویلی کے لاؤنج میں خاموش مورت بنی کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تائی اور تایا ماموں سے تعزیت کر کے گھر چلے گئے تھے اور مجھے 2 دن بعد لینے کے لیے آئے تھے۔ نہ جانے مجھے آج کیا ہوا تھا کہ میں اپنے آپ کو زور زور سے مارنے لگی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں خود کو ختم کر لوں۔ کتنا انہوں نے مجھے روکا تھا، لیکن میں رکی ہی نہیں تھی۔ یہ احساس مجھے مارنے کے لیے کافی تھا۔ اچانک ہی کسی مردانہ ہاتھ نے میرے ہاتھوں کو تھاما تھا۔
जबकि मैंने आंसू भरी निगाहों से उस शख्स को देखा था। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े मामू का बेटा था, जो पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका गया हुआ था। और आज उसे अपने सामने देखकर मुझे उससे नफ़रत सी महसूस हुई थी। मेरे नाना उससे भी बहुत प्यार करते थे। हर वक्त उनके लबों पर शाबिर का ही नाम रहता था। और आज वो इतनी देर से आया था जब उनका कफन दफन भी हो चुका था। मैंने झटके से उससे दूर हुई थी और गुस्से से उसकी शक्ल देखते हुए फनकारी थी। अब यहाँ क्या लेने के लिए तुम आए हो? जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत थी तब कहाँ थे? तुम अब क्या तमाशा देखने के लिए आए हो, या फिर अपने बाप की तरह मेरे नाना की जायदाद हासिल करने के लिए आए हो? मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उन सब को ख़त्म कर दूं। उन लोगों की लालची तबीयत ने ही तो मेरे नाना को आज आबदी नींद सुला दिया था। मेरी आवाज़ से सभी अपने कमरों से बाहर आ गए थे, जबकि मेरी मुमानी तो गुस्से से मेरी तरफ बढ़ी थी। लेकिन उससे पहले ही मामू ने उन्हें थाम लिया था। ना जाने उनकी आंखों में ऐसा क्या था कि मामी अपनी जगह ही ठहर गई थी। शाबिर मेरी तरफ देखते हुए सर्द लहजे में बोला था, क्योंकि मेरी फ़्लाइट लेट थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हर इंसान को अपना मुस्तकबिल संवारना होता है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो 10 जमात पढ़कर घर बैठ गया। अपनी औकात में रो लड़की। वो ये बोलकर अपने बाप की तरफ बढ़ा था, जबकि मैंने नफ़रत से उसकी पुश्त को देखा था और ज़मीन पर बैठती चली गई थी। मैं हवेली की लाउंज में ही बैठी हुई थी। मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये मेरे साथ क्या हो गया। उन सब के पास तो उन लोगों के माँ बाप मौजूद थे, उनका पूरा ख़ानदान था, लेकिन मेरा पूरा ख़ानदान ही मेरे नाना थे। उनकी मौत ने मुझे ख़त्म कर दिया था। वक्त गुज़र रहा था और उनका स्वयं भी हो गया था। आज वकील साहब घर आए थे। मैं हैरान थी कि वो यहाँ क्यों आए हैं। मुझे मालूम था कि रात तक ताया और ताई भी मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। पहले तो वो नाना के सहारे मुझे यहाँ भेज दिया करते थे, लेकिन अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वकील साहब जैसे ही घर में दाखिल हुए तो उनके पीछे ही ताया ताई भी घर में आए थे। मैं तो उन्हें देखकर एक बार फिर रो पड़ी थी, जबकि मेरे ताया ने मेरे बाप की तरह मेरे सर पर हाथ रखा था और मुझे अपने होने का मान बख्शा था। वो मुझे देखते हुए बोले, चलो चंदा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। ये घर अब तुम्हारे लिए नहीं बना। यहाँ के मकीन तुम्हें सुकून की सांस लेने नहीं देंगे। जिस शख्स के सहारे हम तुम्हें यहाँ भेजते थे वो अब यहाँ नहीं रहा, इसलिए मुझे अब किसी की ज़ात पर भरोसा नहीं है। मैंने भी सर को हल्की सी जनबिश दी थी और अपना मोबाइल लेने के लिए हवेली में मौजूद अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। लेकिन उससे पहले ही वकील साहब मेरी जानिब देखते हुए बोले, नूर बेटा, अभी आप कहीं नहीं जा सकती। मुझे आपके नाना की वसीयत पढ़कर सुनानी है, इसीलिए आप ठहर जाएं। मैंने एक नज़र उन्हें देखा था और उन्हें सर्द लहजे में बोली थी, मुझे उनकी वसीयत, उनकी जायदाद, उनके पैसे रुपये से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ के जो मकीन हैं उनको ही ये पैसा रुपया मुबारक हो। मैं अपने ताया के साथ जाना चाहती हूँ। वकील साहब की आमद की खबर पूरी हवेली में आग की मानित फैली थी। जब मैं वकील साहब के रूबरू हुई थी तब तमाम मकीन हवेली के लाउंज में जमा हो चुके थे। मैं ये बोलकर कमरे के अंदर चली गई थी और वहाँ से अपना मोबाइल लेकर बाहर आ चुकी थी। मैंने अपने सर पर दुपट्टा जमाया था और ताया के साथ घर से बाहर निकलने लगी थी, लेकिन उससे पहले ही शाबिर मेरे रास्ते में हाइल हुआ था और मुझे देखते हुए कहने लगा, वकील साहब ने जो तुम्हें कहा है उनकी बात को सुनो। फजूल के तमाशे अपने ताया के घर जाकर लगा लेना, ये कानूनी असूल है और इसकी पासदारी तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो काफ़ी संजीदा था। वो देखने में बला का हसीन था। दराज कद, चौड़ी जिसामत, काले घने बाल, जिसको वो हर वक्त तरतीब से बना कर रखता था। वाइट शलवार कमीज़ में वो यहाँ का कोई जागीरदार ही लग रहा था। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे ताया ने मुझे कंधे पर हाथ रखा था और मुझे सोफे की तरफ लेकर बढ़े थे। मैं एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए महज यही कहा था, ये तुम्हारे नाना की वसीयत है।
इसको सुनना तुम्हारा हक है। क्या तुम अपने नाना की आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगी? जबकि ये बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। नाना की वैसे ही आखिरी ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर पाई थी, और जब मुझे मौका मिल रहा था तो मैं उसको गंवाना नहीं चाहती थी। हवेली के तमाम मकीन ही लाउंज में आकर बैठ चुके थे और सबकी निगाहें वकील साहब के चेहरे पर ही मकरूज थी। मुझे उन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस ताया की बात का मान रखना मुझ पर फ़र्ज था, क्योंकि जो जो उन्होंने आज तक मेरे लिए किया था वो नाना के मुकाबले में हरगिज़ कम नहीं था। वकील साहब ने नाना की वसीयत पढ़ना शुरू की थी, और जैसे जैसे वो उनकी नसीहत पढ़ते जा रहे थे सबके रंग तब्दील हो रहे थे, जबकि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वकील साहब ने वसीयत पढ़ने के बाद उसे बंद किया था और मेरी जानिब देखते हुए बोले थे, ये आपको करना होगा। आपके नाना ने इसमें वाज़े लिखा है कि आपको उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी, वरना वो रोज़े महशर आपसे ये सवाल ज़रूर करेंगे, क्या उनकी मोहब्बत और उनके एहसानों का बदला आपने इस तरह चुकाया है? ये बोलकर उन्होंने शावेर की तरफ देखा था और उसे भी ये अल्फाज बोले थे, जबकि मेरा दिल ऐसा हो रहा था जैसे अभी फट जाएगा। मेरे दोनों मामू सर हाथों में गिराए बैठे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। जो वसीयत नाना जान ने की थी वो मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी। मैं एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई थी और ताया की जानिब देखते हुए गुस्से भरे लहजे में बोली थी, यही सब तमाशा सुनने के लिए आपने मुझे यहाँ ठहरने पर आमादा किया था? अब बहुत हो गया है, मुझे घर जाना है। मैं यहाँ एक पल नहीं ठहरना चाहती। ये वसीयत और ये जायदादें उन्हें ही मुबारक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये कहकर जैसे ही घर की दहलीज पार करती, उससे पहले ही हवेली के दरवाजे बंद हो गए थे। मामू, आप सोचना भी मत कि मैं इस वसीयत के हिसाब से चलूँगी। मैं मरती मर जाऊँगी, लेकिन नाना की इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं करूँगी। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, मैं किसी के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। जबकि अचानक ही मेरे छोटे मामू मेरी जानिब बढ़े थे और मुझे बाजू से घसीटते हुए कमरे में ले जाने लगे थे। मेरी ताई ताया उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन उन्हें धक्के मार कर उस हवेली से निकाल दिया गया था कि ये अब आपका मामला नहीं है, ये हमारी भांजी है और हमें इसके साथ क्या करना है हम इस बात को जानते हैं। मैं रोती रह गई थी, लेकिन उन सब ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। दरवाज़ा खोलो, मैं कभी आप लोगों का साथ नहीं दूंगी, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन हवेली के मकीन तो अपने कान लपेट चुके थे। मेरा दम घुट रहा था। नाना जाते जाते मुझे ऐसी अजियत से दो चार कर चुके थे जिसका कोई नेमल बदल नहीं था। मैं बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला गया था। वक्त गुजर रहा था, लेकिन कोई मेरी फरियाद को तरजीह नहीं दे रहा था। रात को मेरे कमरे में बड़े मामू तशरीफ़ लाए थे। उन्हें देखते ही मैंने नफ़रत से रुख फेर लिया था। ये लोग बिल्कुल ही फ़िरौन बन चुके थे। पैसों की लालच ने इन सब की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। ये क्या करना चाहते थे मुझे कुछ मालूम नहीं था। वो मुझे देखते हुए बोले, अगर तुम आसानी से हमारी बात मान जाती हो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो माजरत के साथ हम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करेंगे और तुम्हारी शादी हर हाल में शाविर से करवाएंगे। जबकि मैं गुस्से से फनकारी थी। मुझे आपकी किसी भी वसीयत का हिस्सा नहीं बनना। ना जाने नाना जान ने क्या सोच कर ये वसीयत लिखवाई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं चाहिए ये दौलत, आपको आपकी ये दौलत और रुपया पैसा मुबारक हो। जबकि वो मेरी बात सुनकर बोले थे, बिल्कुल हमें ही मुबारक होगा, और ये हमारे माँ बाप की ही जायदाद है जो हमारे ही हिस्से में आएगी। अगर तुमने शाबिर से शादी नहीं की और उसके साथ कोई शाद ज़िंदगी बसर नहीं की, और पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी, और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मेरी आंखों से आंसू फल फल बहने लगे थे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मेरे नसीब में कैसा ननियाल आया था। मैं शाबिर के तमाम करतूत से वाकिफ़ थी। वो एक अच्छा इंसान नहीं था। लड़कियों के साथ रात देर तक बातें करना, उनके साथ घूमना फिरना उनका पसंदीदा मशगला था, जबकि मैं उसके बिल्कुल बरअक्स थी। मैं 5 वक्त की नमाजी थी, तहज्जुद गुजार थी, गैर मर्दों से पर्दा करती थी, और यही शावेर बहुत बुरा और गलत सोबत का शिकार था।
नाना ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद ये सारी जायदाद शाबिर और मेरे नाम हो जाएगी, और अगर हम एक दूसरे से शादी नहीं करते तो सारी जायदाद जितनी भी नाना के नाम है वो तमाम ट्रस्ट में चली जाएगी। और मेरे लालची मामू ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मुझे शाबिर की तरफ से कुछ इल्म नहीं था कि वो क्या चाहता है। मेरी और उसकी बचपन से कभी नहीं बनी थी। वो बहुत ही अलग किस्म का इंसान था और बहुत ही बदतमीज़ इंसान था। जब ममा के साथ उसके घर में आती थी तो मैं हमेशा शाबिर से छुप कर रहती थी। वो कभी कभार मुझे मारकर भाग जाता था तो कभी मुझसे मेरी चीज़ छीन लेता था। वो हमेशा मुझ पर हुक्म चलाना ही जानता था। उसका कहना था कि तुम एक डरपोक बच्ची हो और मैं तुम्हें मार दूंगा, और ये चीज़ें मुझे बहुत खौफजदा करती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने होश संभाला तो सारी बातें समझ आने लग गई थी कि वो सिर्फ बोलने की हद तक ही काम कर सकता है, उसके अलावा उसमें इतना हौसला नहीं है। मेरे दूसरे मामू की 2 बेटियां थीं और उन दोनों की ही शादी हो चुकी थी। बस बेटों में शाबिर ही था। मैं उस रात बहुत रोई थी। मैं मुसलसल अपने ताई जान को पुकार रही थी, लेकिन ना उन्होंने आना था और ना वो आए थे। ताया जान बहुत प्यार करते थे। ताई जान का भी यही आलम था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराती थी। मेरे मामू वगैरह से बहुत डरती थी क्योंकि मेरे मामू वालों की बहुत पहचान थी। अगर मेरे ताया कुछ भी करने की कोशिश करते तो उनको जान से भी मार दिया जाता। और भला कोई बीवी अपने शौहर पर आँच कैसे आने दे सकती है। मुझे इल्म था कि अब कभी भी ताया जान मेरे नाना वालों की दहलीज पर कदम नहीं रखेंगे। अगले रोज़ भी मेरे साथ यही सब कुछ हुआ था। कभी बड़े मामू आते तो कभी छोटे मामू आते, मुझे समझाने। मुझे मुसलसल ज़हनी अजियत दी जा रही थी और आखिर में शाबिर कमरे में आया था। मैं जाए नमाज लपेट कर जैसे ही रखने लगी तो वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। दराज कद, चौड़ी जसामत, लट्ठे की मानित, अकड़ा हुआ सूट पहने वो अपनी पुश्त पर हाथ बांधे खड़ा मुझे यकटिक देख रहा था। मैंने उसकी जानिब देखा और गुस्से से फनकारी, तुम्हें तमीज़ नहीं है किसी लड़की के कमरे में आने की? जबकि वो कदम ब कदम मेरे करीब आने लगा था। मेरा दिल बेसाख्ता धड़क उठा था। मेरी हथेलियाँ नम होने लगी थीं। मुझे अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटी मंडलाती हुई महसूस हो रही थी। वो जिस अंदाज में मेरी जानिब कदम बढ़ा रहा था, मुझे बहुत कुछ गलत होता महसूस हो रहा था। लेकिन अचानक ही वो बेड पर धंस सा गया था। मेरा दिल किसी चिड़िया की मानित फड़फड़ा रहा था। कुछ पल के लिए थम सा गया था, लेकिन अचानक ही वो बेड पर धंसा गया था। मेरा दिल जो किसी चिड़िया की मानित फड़फड़ा रहा था, कुछ पल के लिए थम सा गया था। वो मुझे देखते हुए कहका लगाकर हंसा और कहने लगा, तुम ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मुझे भी अदब व आदाब मालूम है। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बेइंतहा नफ़रत करती हो, लेकिन तुम्हारे पता की बात कर रहा हूँ। सुन लोगी तो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। वो बहुत ही नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था, इसीलिए मुझे उसकी बात सुनने में कोई कबाहत महसूस नहीं हुई थी। वो मुझे देखते हुए बोला, नूर, मुझे मालूम है तुम मुझे पसंद नहीं करती और ये मेरा मानना है कि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। लेकिन देखो, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ, बाबा और चाचू लालची तबीयत के मालिक हैं। दोनों को ही दौलत की हवस है और यही सोचकर दादा ने तमाम जायदाद तुम्हारे और मेरे नाम की है। लेकिन इस पर भी उन्होंने एक शर्त रखी है कि अगर हम दोनों की शादी हो जाएगी तब भी हमें ये जायदाद मिलेगी। अगर वो चाहते तो अपनी 2 और पोतियों के नाम भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारा इंतखाब किया क्योंकि तुम सबके मुकाबले में काफ़ी समझदार हो। मुझे काफ़ी हैरत हो रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये शख्स मेरे मुंह पर बैठकर मेरी तारीफ़ करेगा। मैं उसको बागौर सुन रही थी। वो मज़ीद बोला, इसीलिए मैंने एक मंसूबा बनाया है, हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसका ये कहना था कि मैं यकदम ही हते से होकर झुकी थी। अपनी बकवास बंद करो और मेरे कमरे में से दफ़ा हो जाओ। तुम जैसे घटिया इंसान से कभी मर के भी शादी नहीं करूँगी, जिसका कोई दीन ईमान ही नहीं है। 10-10 लड़कियों के साथ घूमते फिरते हो और आए हो मुझसे बात करने। अपनी हद में रहो। जबकि वो अचानक ही मुझे बाजू से पकड़कर बिस्तर पर बिठा चुका था और मेरी आंखों में आंखें झांकते हुए बोला, खामोश होकर लड़की मेरी बात सुन लो। इसके बाद जो तुम्हारा फ़ैसला होगा मुझे मंजूर है। फजूल में इतना ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी दिमाग से भी काम लेना चाहिए। लेकिन खैर, तुम लड़कियों के पास दिमाग होता ही कहाँ है। नूर,
मेरी बात को गौर से सुनो। बाबा और चाचू हद दर्जा लालची शख्स हैं। अगर हम दोनों को जायदाद मिल जाती है तो कम से कम हम इसका इस्तेमाल अच्छी जगहों पर कर लेंगे, ताकि आखिरत में दादा को इसका सवाब मिल सके। तुम भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकती हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, क्योंकि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम घर में रहने वाली लड़की हो और मैं बाहर मुल्क घूमने वाला लड़का हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, फिर हम अपने अपने ख्वाब बआसानी पूरे कर सकते हैं। देखो यार, बाबा और चाचू के हाथ में जायदाद जाएगी तो वो दोनों सिर्फ़ और सिर्फ उसका गलत इस्तेमाल करेंगे और लोगों पर अपना रोब झाड़ेंगे। उसके अलावा वो दोनों कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि हम दोनों रजामंदी दे देते हैं। इसीलिए मैंने उसे साफ कह दिया था कि आप मेरे कमरे से जा सकते हैं, जबकि वो मेरे गाल पर हाथ रखते हुए बोला, स्वीट हार्ट, इस बारे में एक बार सोच लेना। अगर तुम्हें मेरा मंसूबा दुरुस्त लगे तो मुझे बता देना। हम दोनों अपनी अपनी तरफ से रजामंदी दे देंगे। अगर हम दोनों फैसला लेकर उन लोगों के हाँ बोलेंगे तो ये हमारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम दोनों ही इनकार करते रहेंगे तो ये हमारी शादी लाजमी करवाएंगे और बंदूक की ज़ोर पर तमाम जायदाद भी अपने नाम करवा लेंगे। वो ये बोलकर वहाँ से जा चुका था, जबकि उसके आखिरी जुमलों ने मेरे कान खड़े कर दिए थे। मैं इशा की नमाज़ पढ़ चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। हालांकि इशा के बाद मुझे हमेशा नींद आ जाती थी। मैं कमरे से मुंसलिक बालकोनी में बैठी आसमान को तक रही थी। मेरी आंखों से आंसू तवातर बह रहे थे। मैं एक सितारे को बहुत गौर से देख रही थी और उसके हम कलाम थी। नाना जान, आप कहते थे ना, आपकी ज़ौजा मरने के बाद एक सितारा बन गई थी। अब आप भी तो इस दुनिया से जा चुके हैं और आप भी सितारा बन गए। आपको मालूम है, यहाँ सब आपकी जायदाद को नोचना चाहते हैं। इंसान को इतनी जायदाद बनानी ही नहीं चाहिए जो मरने के बाद रिश्तेदारों का जीना हराम कर दे। आपकी वसीयत मुझे कुछ समझ नहीं आती। आखिर आपने ये वसीयत क्यों की? हालांकि आपको इस बात के बारे में इल्म था कि मुझे शाबिर बिल्कुल नहीं पसंद, तो फिर आपने मेरी ज़िंदगी में उसे क्यों शामिल किया? उसकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। अगर हम दोनों शादी के लिए रजामंद हो जाते हैं तो मैं अपने तमाम ख्वाब पूरे कर सकती हूँ, और वो भी। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो मामू वाले ये तमाम जायदाद नाजायज़ तरीके से हड़प लेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या फ़ैसला लूँ। मेरी मदद करें नाना जान, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जब परेशान होती थी तो आप भी मेरा सहारा बनते थे। आप कहाँ चले गए हैं? मैं मुसलसल रोती जा रही थी और उनको याद कर रही थी। कब मेरी आंख लगी मुझे कुछ इल्म नहीं था। मैं बालकोनी में ही कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी। रात के 3 बजे मैं झटका खा कर उठी थी। मैंने ख्वाब में देखा था जिसमें नाना जान मेरे बराबर में बैठे मेरे सर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहे थे और मैं उनको मुसलसल देख रही थी। मुझे महज उनके चंद अल्फाज याद थे, मेरी गुड़िया, तुम शावेर के लिए मान जाओ, वो अच्छा है, तुम उसके साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारोगी। जबकि मैं नाना के इन अल्फाजों में उलझ के रह गई थी। शावेर तो 10-10 लड़कियों के साथ घूमता था, तो वो भला कैसे अच्छा हुआ? लेकिन मुझे जवाब मिल चुका था। मैंने उठकर तहज्जुद की नमाज अदा की और बिस्तर पर आकर सो गई। फजर पड़ने के बाद मैं सीधा शावेर के कमरे में आई थी। वो नींद की वादियों में खोया हुआ था। मैंने उसके कमरे की लाइट जलाई और उसका कंधा पकड़कर हिलाया था, जबकि वो सुबह सवेरे मुझे अपने कमरे में देखकर बुखला गया था। वो मुझे हैरत से देखते हुए बोला, क्या हो गया है? सब खैरियत है? तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जबकि मैं उसे इशारे से खामोश रहने की तलकीन करने लगी थी। वो मुझे हैरत से देख रहा था। उसकी हैरत बजा थी। मैं कभी भी उसके कमरे में जाना पसंद नहीं करती थी और आज इतनी सुबह मैं उसके कमरे में तन्हा मौजूद थी। मैंने शाबिर को देखा और महज चंद अल्फाज बोली, मैंने रात भर इस बारे में सोचा है। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक लग रही हैं। अगर ये जायदाद हम दोनों के हाथों से चली गई तो मामू वाले इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बेहतर है कि हम दोनों रजामंदी दे देते हैं। मुझे मंजूर है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे एक बार फिर रोना आया था। आज मैं उस दोराहे पर खड़ी हुई थी जहाँ पर सिवाय जिल्लत के और कुछ नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जो मैं फ़ैसला ले चुकी हूँ वो मेरे लिए बहुत गलत साबित होने वाला है। खुदा गवाह था कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था।
نہ ہی مجھے جائیداد کی لالچ تھی۔ بس میں اپنے نانا کی جائیداد کو اس طرح برباد ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جب یہ خبر ماموں والوں کو ملی کہ میں اور شاور دونوں ہی شادی کے لیے تیار ہیں تو وہ لوگ پاگل سے ہو گئے تھے۔ شادی کی تیاریاں اس طرح کی جا رہی تھیں جیسے یہ بہت کوئی خوشگوار شادی ہو، حالانکہ مجھے تو سوائے شاویر سے نفرت کے اور کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اور جہاں تک مجھے معلوم تھا یہی حال اس کا بھی تھا۔ میں نے اپنے تایا جان کو بلانے کی ضد کی تھی لیکن اس بات کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ میرا کوئی بھی اپنا میرے قریب نہیں تھا اور وہ لوگ ہی میرے پاس تھے جن سے میں نفرت کرتی تھی۔ تھوڑی رسومات کے بعد مجھے شاویر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، جبکہ میں نے وہاں جاتے ہی تمام زیورات کو اپنے وجود سے دور پھینکا تھا۔ اس سارے ڈرامے نے مجھے بہت تھکا دیا تھا۔ مجھے ابھی بستر پر لیٹے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ شاور ہنستا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور مجھے ایسے دیکھ وہ حیران رہ گیا تھا اور کہنے لگا، نور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کا لہجہ اچانک ہی سرد ہوا تھا، جبکہ میں نے اسے حیران نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا میرے قریب ہی بیٹھ چکا تھا، جبکہ میں فوراً ہی سمٹ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں معلوم نہیں کہ آج ہم دونوں کی سہاگ رات ہے؟ تم اپنا لباس اور یہ زیورات کس طرح اتار سکتی ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ دن ہر شوہر کا ہوتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں غصے کا عنصر تھا، جبکہ میں حیران تھی۔ ہم دونوں کے بیچ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ شوہر بیوی سہاگ رات، طبیعت ٹھیک ہے؟ میرا لہجہ کافی اکھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، لیکن لگتا ہے تم ٹھیک نہیں ہو۔ کس کی اجازت سے تم نے یہ کپڑے تبدیل کیے ہیں؟ اس کا لہجہ سرد سے سرد ترین ہوتا جا رہا تھا، جبکہ ایک پل کو مجھے اپنا فیصلہ غلط ہوتا ہوا لگا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو تم مجھے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے، جبکہ وہ اچانک ہی میرے بہت قریب آ گیا تھا۔ میں ابھی ڈر کے مارے بے ہوش ہوتی کہ وہ میرے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر کہکا لگا کر ہنسا تھا اور ہنستے ہنستے میری گود میں سر رکھ چکا تھا۔ وہ میری ناک کھینچتے ہوئے بولا، یار تم تو اتنے ہی ڈر گئی ہو۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم بہت بہادر ہو، لیکن یقین مانو نور، تمہارا اتنا سا منہ نکل آیا تھا۔ وہ بہت ہی الگ قسم کا انسان تھا، کبھی بہت بدتمیز تو کبھی بہت پیار کرنے والا، اور جو ابھی اس نے کیا تھا وہ تو میرا دل ہی بند کر چکا تھا۔ وہ کافی دیر تک ہنستا رہا اور میں اسے ہنستا دیکھ کر کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ مجھے خود کو تکتا پا کر ایک بار پھر مسکرایا اور میرے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، لڑکی اتنے پیار سے دیکھو گی تو پاگل ہو جاؤں گا۔ لڑکیاں ایسے ہی دیوانی نہیں میری، جبکہ میں نے فوراً ہی اسے دور جھٹکا تھا اور منہ بناتے ہوئے بولی تھی، بڑے آئے ہو تم ہیرو، ہٹو یہاں سے، نیند آ رہی ہے مجھے۔ میں مسکراتے ہوئے سو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل بول رہا تھا میرا انتخاب غلط نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی میں کیسا عذاب آنے والا ہے۔ ہم دونوں جب صبح بیدار ہوئے تو کافی خوش تھے۔ اس کے چہرے پر بھی ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی اور یہی حال میرا بھی تھا۔ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے نکاح میں آ کر اتنا خوش کیوں ہیں، حالانکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی محبت کا رشتہ نہیں تھا۔ ہم تو ایک دوسرے کی عزت بھی نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے نفرت جتاتے رہتے تھے۔ لیکن اب عالم یہ تھا کہ ہم کل رات سے ہی مسکرائے جا رہے تھے، اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اس بات سے ہم دونوں ہی ناواقف تھے۔ ہم نیچے گئے تو سامنے ہی وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سب کی موجودگی میں ہی پوری جائیداد میرے اور شبیر کے نام کی تھی اور پھر وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ سب نے ہم دونوں کو مبارکباد دی تھی۔ اور اچانک ہی بڑے ماموں میرے قریب بیٹھ گئے تھے۔ ایک پل کو میں حیران ہو گئی تھی، لیکن سر جھٹک دیا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، دیکھو بیٹا، تم بہت چھوٹی ہو، یہ معاملات تم نہیں دیکھ سکتی، اس لیے ایک کام کرو، اپنے حصے کی جائیداد بھی تم شاور کے نام کر دو، اور اس میں تمہاری بہتری ہے۔ جبکہ میں نے ایک آئی برو اچکائی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شاور مجھے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تھا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دھیرے دھیرے اسے سب سمجھا دوں گا۔ میری بیوی کی جائیداد اس کی ہی رہے گی، مجھے اس میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں چاہیے۔ صحیح کہا نا میں نے نور؟ میں دھیما سا مسکرائی تھی اور سر ثابت میں ہلا دیا تھا۔ وہ مجھے تھام کر کمرے میں لے آیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے دھیمی سی آواز میں بولی، شکریہ، جبکہ وہ سر خم کرتے ہوئے ایک بار پھر بستر پر لیٹ گیا تھا۔
मैं अपना सामान उसकी अलमारी में तरतीब देने लगी थी। मुझे मालूम नहीं था कि हमारी ज़िंदगी क्या होने वाली है, क्योंकि ये शादी एक मुआहदा थी और ये मुआहदा कब तक चलना था हम दोनों इस बात से नावाकिफ़ थे। मगर हकीकत तो कुछ और थी। किस्मत तो हमारे साथ कुछ और ही करना चाहती थी। वक्त गुजर रहा था और हम दोनों एक साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। बड़े मामू और छोटे मामू किसी भी तरह मेरी और शावेर की जायदाद हथियाना चाहते थे, लेकिन यह बहुत मुश्किल था क्योंकि शावेर कोई कच्ची गूढ़ नहीं था। उसने अपने बाप और अपने चाचू को तिकनी का नाच नचा दिया था, लेकिन उनके हाथ एक फूटी कोड़ी भी आने नहीं दी थी। मुझे अब समझ आया था कि नाना ने मेरे लिए शावेर का इंतखाब क्यों किया था, क्योंकि वही एक वाहिद इंसान था जो अपने बाप और अपने चाचा को सीधा कर सकता था और इस दुनिया की ऊंच नीच से मुझे बचा सकता था। उसने मेरा एडमिशन करवाया था और मेरी सरपरस्ती में अपना नाम लिखवाया था। मेरे लिए सब कुछ काफ़ी हैरान कुन था। मुझे इस जायदाद से कोई सरोकार नहीं था। न जाने कब मेरा दिल शावेर के नाम से धड़कने लगा था। मुझे खुद इस बात का इल्म नहीं था। मुझे कब उससे मोहब्बत हुई थी मुझे कुछ मालूम नहीं था। हम दोनों की शादी को 1 साल गुजर गया था, लेकिन ना वो मेरे कभी करीब आया था, ना ही मैं उसके करीब जाने की कोशिश करती थी। हम दोनों एक कमरे में रहते हुए भी काफ़ी दूर थे, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। मैं अपने दिल की हर बात उससे करती थी और वो भी मुझे अपनी हर बात बताया करता था। वक्त अच्छा गुजर रहा था। एक रोज़ अचानक उसने मुझसे एक बात कही थी जिसको सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। वो मुझे देखते हुए बोला, नूर, हम दोनों इस तरह नहीं रह सकते यार। देखो, तुम्हारी भी ज़िंदगी है, तुम्हारे भी असूल हैं और मेरी भी ज़िंदगी है। हम दोनों के मिजाज बहुत मुख्तलिफ हैं। हम एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं, लेकिन हम सफ़र नहीं। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तलाक दूंगा ताकि तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हम दोनों का मुआहदा भी यही था। जब हम अपनी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाएंगे तो ये शादी ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज उसके मुंह से ये बात सुनकर मुझे अपना दिल कटता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू का तवातर बहने लगे थे और जब उसने वजह पूछी तो मैं रोते रोते इज़हार मोहब्बत कर चुकी थी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। और उसी पल उसने मेरे हाथ में अंगूठी पहनाई थी और मेरे माथे पर अपने होंठ रखते हुए बोला, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम हो। काफ़ी दिन से मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन डरता था कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए, इसीलिए तुम्हारा हाल जाने के लिए ये ड्रामा किया। जबकि मुझे इतना गुस्सा आया था, मैं उसे मारने लगी थी, लेकिन उसने हंसते हुए मुझे अपने सीने से लगाया था। आज मुझे अपने नाना के इंतखाब पर रश्क आता है कि उन्होंने मेरे लिए कितना अच्छा हमसफ़र चुना, जबकि उसने अपने माँ बाप और चाचू को सही सबक सिखाया था। वो लोग हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन अब कभी भी जायदाद हासिल करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है इस जायदाद का असल वारिस कौन है।